Hello everyone, this is Ritu from Modern English High School. Today I will be taking chapter 5, Introduction, Lines and Angle of Standard 7. Now as this is an introduction chapter, if you would be able to understand this introduction clearly, then definitely future exercises you would be able to understand. Now in this, total 9 topics are there. So this is the first video. Total 2 videos would be there. In the first video I will try to cover first 4 topics, and remaining topics would be covered in the next video. I'll start with the video. Now in the starting, now you chapter 5, lines and angles. Now the first is angle. I have told you 4 topics I am going to cover. This first one is angle. This angle you have already studied in the previous classes. So this is just a recall of what is been studied in the previous classes. So acute angle, which is less than 90 degree. Here you can see acute angle is less than 90 degree. It is having a shape like this. It's like a close, this type. Here I have made it with a pencil also. Now obtuse is greater than 90 degree. And the shape is somewhat like open. I cannot open so more than that my finger, but here you can see how the angle is been made. Obtuse angle, by looking at the angle only you can make out angle which is more than 90 degrees, obtuse angle. Right angle, it's a straight angle, it's also got a right angle, the straight line is there. Then 90 degree angle, straight angle, this is a straight angle, means straight line. The straight line, the angle if you will see it is 180 degree. You must have seen in your protector also, straight line is of 180 degree. Next, reflex angle, which is more than 180 degrees your reflex angle. So this type of angles we have already studied. So this is a recall of what we have studied in the previous classes. So acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle. Acute angle less than 90, obtuse more than 90, right 90 degree, straight angle 180 degree, and reflex angle more than 180 degree. This is a symbol of more than. Now next topic, second topic is complementary angles. Now as you can see here, we have studied angle only. Here the word angles has been used. Angles means here we are talking about more than one angle. So complementary angles are actually two angles whose sum is 90 degree. Means if one angle is 40 degree, the other would be 50 degree. So 50 plus 40 would be 90 degree. So if one angle is 40, the other would be 50 degree. So both the angles, sum of both the angles would be complementary. So we can say both the angles are complementary angles. So here we can see this by example. Suppose one angle is 50, other is 40. So these two are complementary angles. Why? Because their sum is 90. Yes. See, I have written yes here because the sum of these two angles is 90. Now here you can see two types of questions can be asked in this type of a question in complementary angles. Like if two angles are given to you, so you will have to tell after adding whether it's a complementary or not. So if after adding it comes 90, yes it is a complementary. If after adding it doesn't come 90, then it is not a complementary angle. So this is the first type of a question A which I have written. So here in first type of a question, both the type of both the measurement of both the angles would be given to you, and you just have to tell after adding that whether they are complementary or not. Second type of a question is they will be telling you yes there we are talking about two angles. Out of the two angles the measurement of one angle is given to you. दो में से एक का मेजरमेंट आपको दिया होगा, तो आपको दूसरे का मेजरमेंट निकालना होगा और ये आपको बोला होगा कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. तो आपको पता है कि 90 दोनों का सम है, तो अगर दोनों में से एक 60 का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए. तो अगर एक 60 का है तो हमारा अदर एंगल को हम लोग x ले लेते हैं. अब हमें पता है दोनों का मेजर 90 होगा यहाँ पे, क्योंकि गिवन है हमको कॉम्प्लीमेंट्री है. ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्ट तो ये मैंने बताया. सेकंड में आपको एक एंगल का मेजर दिया होगा, आपको दूसरे का मेजर निकालना होगा और आपको ये बोला होगा कि दोनों जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है. तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री है मीन्स दोनों का सम 90 होगा. तो ऐसे अपने 60 को इस साइड लेके जाएंगे. ये अपने ने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि 60 को और एनी नंबर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट में आप लेके जाते हो तो साइन चेंज होता है. अब ये 60 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है. तो प्लस का साइन जब इधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाता है.
तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कोई भी नंबर जंप करता है तो उसका साइन हमेशा चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, दैट यू ऑलरेडी स्टडीड इन द सिंपल इक्वेशंस, पहले पे पढ़ा था। अगर नहीं याद है तो फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ से 60, ये आपका लेफ्ट साइड है इक्वेशन का, ये लेफ्ट हैंड है ना आपका इस तरफ, उस साइड राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका ये 60 है, तो ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का हो गया, तो हमारा एक्स क्या है 30। तो अगर आपके दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है और एक का मेजर 60 है तो दूसरे का 30 होगा। सो ऐसे हमारे दो टॉपिक्स कवर हो गए, फर्स्ट इज एंगल, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ व्हाट इज दिस सप्लीमेंट्री एंगल्स? जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने पढ़ा था सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स भी दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें भी वही सेम, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में दो क्वेश्चंस थे, इसमें भी वही तरीके के दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि आपका दो एंगल्स का आपको मेजरमेंट दिया होगा, आपको बताना रहेगा ऐड करके कि ये सप्लीमेंट्री है या नहीं। लाइक यहाँ पे देखो, एक एंगल आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको 80 डिग्री दिया हुआ है। नाउ यू विल हैव टू टेल कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं या नहीं। तो 100 + 80 इज 180, तो येस दे आर सप्लीमेंट्री। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री में अपने ने किया था सेम वैसे ही सप्लीमेंट्री में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। और सप्लीमेंट्री में सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था, एक एंगल आपको गिवन है, आपको दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है और आपको बोला होगा कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो उन्होंने आपको सेकंड एंगल, एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, तो आपको सेकंड एंगल निकालना है, और अगर दोनों एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री हैं तो ये इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लेट द अदर एंगल बी एक्स। तो 70 + x, वहाँ पे 90 था, वहाँ पे 90 था, मैंने किया था क्योंकि दोनों का सम, यहाँ देखो यहाँ पे 60 + x 90 किया था अपने ने, यहाँ पर 70 + x 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन होगा कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 आना चाहिए यहाँ पर, और सप्लीमेंट्री मीन्स 180। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और एक एंगल का मेज़र आपको 70 दिया हुआ है, तो दूसरे का मेज़र कितना होगा, तो यहाँ से 70 इधर जाएगा तो नेगेटिव का साइन आएगा, देन x वुड बी 110 डिग्री। तो ऐसे इस तरीके के दो क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। ओके, नाउ वी कम टू अवर फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक। फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक आएगा हमारा एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, क्लास में आप कैसे बाजू बाजू में बैठते हो एकदम, और जब भी आप सीट्स पे बैठते हो बेंच पे, फ्रेंड और आपका हाथ टच करते हैं कई बार एक दूसरे को, एक हैंड आपका लेफ्ट हैंड और उसका राइट हैंड ऐसे टच होते हैं एक दूसरे को व्हेन यू आर सिटिंग बिसाइड योर फ्रेंड। तो ऐसे ही एडजेसेंट एंगल भी ऐसे ही होते हैं, इसमें बाजू बाजू वाले एंगल्स को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक आर्म कॉमन होती है, जैसे अभी बेंच पे भी आप बैग अगर बीच में रखो तो आप कॉमन बैग पे दोनों जने हाथ रख सकते हो, तो एक जो बैग है दोनों के लिए कॉमन प्लेस हो गया। तो ऐसे ही एडजेसेंट एंगल्स में 3 पॉइंट्स हैं, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये 3 पॉइंट्स क्या है, दैट आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई हुई है, यू कैन सी ओ ए बी सी, ये मैंने एंगल्स बनाए हैं। ये एंगल ए ओ बी और बी ओ सी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब एडजेसेंट एंगल कैसे हैं कि ये दोनों एंगल है, अगर मैं ए ओ बी को देखूं तो ए ओ बी का वर्टेक्स क्या है, ओ। वर्टेक्स होता है जहाँ पे दोनों आर्म्स मिलती है। ये जो ओ ए और ओ बी नज़र आ रहा है आपको, ये एंगल ए ओ बी को देखो आप, जो आपको ओ ए और ओ बी नज़र आ रहा है, दीज आर कॉल्ड आर्म्स। इसको बोलते हैं आर्म, ओ ए आर्म, ओ बी आर्म। तो एंगल का नाम है ए ओ बी, पर ये ओ ए एंड ओ बी ये दोनों आर्म्स है। तो ये जो दोनों आर्म्स जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टेक्स। तो दोनों ओ ए और ओ बी यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ इनका वर्टेक्स है ये। ऐसे ही अभी मैं दूसरे एंगल की बात करती हूँ, ये एंगल बी ओ सी की, ठीक है, ये एंगल बी ओ सी की बात करेंगे तो इसमें भी वर्टेक्स ओ है। तो इसका मतलब ये एंगल ए ओ बी और बी ओ सी का कॉमन वर्टेक्स है ओ, और दोनों में कॉमन आर्म कौन सी है, बी ओ। ए ओ बी की भी आर्म है ओ बी,
और बी और सी की भी आर्म है ओ बी, तो कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, दो सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई। थर्ड सिचुएशन क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ये जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड पे आपके नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए। कोई भी एक एंगल होता है उसमें दो ही आर्म्स रहती है। अब ये एंगल है ए ओ बी, उसकी दो आर्म्स है ए और ओ बी, बी ओ सी की दो आर्म्स है बी ओ और ओ सी। अब ये दोनों में ओ बी कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ओ ए और ओ सी। और ये जो ओ ए और ओ सी है वो ओ बी के दोनों साइड है, ईदर साइड मीन्स दोनों तरफ। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो जो नॉन कॉमन आर्म है ओ ए और ओ सी वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ है। तो हमारी तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अभी इसमें ही एक और केस है, अभी मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है ए ओ बी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट, पर इसमें अगर मैं बात करूँ एंगल ए ओ सी और बी ओ सी के, तो ये एडजेसेंट नहीं है। ए ओ सी ये बड़ा एंगल एंड बी ओ सी ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों? तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एडजेसेंट के लिए। अब तीनों सिचुएशंस क्या है, कॉमन वर्टेक्स तो है इसमें, ए ओ सी और बी ओ सी में कॉमन वर्टेक्स ओ तो है। अब कॉमन आर्म देखे, ए ओ सी और बी ओ सी में कॉमन आर्म भी है ओ सी, पर इसमें जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। अब कॉमन आर्म क्या है, ओ सी। अब नॉन कॉमन आर्म कौन सी हो गई इसमें, ओ बी और ओ ए, ये तो दोनों साइड में नहीं है ओ सी के, तो थर्ड सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। तो तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरी एक बात ध्यान में रखो, कभी भी एडजेसेंट एंगल्स में हमेशा कॉमन आर्म बीच में रहनी चाहिए। इसी तरीके का फिगर होगा बट कॉमन आर्म बीच में रहनी चाहिए हमेशा। जो ये वाली आर्म कॉमन नहीं हो सकती कभी भी, और ये वाली आर्म भी कॉमन नहीं हो सकती, हमेशा कॉमन आर्म बीच में रहनी चाहिए बस, तभी वो दोनों एंगल्स। तो इसलिए हम लोग बड़े एंगल की बात करें, ए ओ सी और बी ओ सी ये कभी एडजस्टेंट नहीं हो सकते, ए ओ बी एंड बी ओ सी ओनली कैन बी adjacent. So with this we have covered the 4 points of the introduction. For the next 5 points you will have to see the next video. Thank you.